Hello friends, welcome in Parsham School. Today we will study social science. आज हम चैप्टर 3 करेंगे. चैप्टर 3 है एंशियंट टाउन्स एंड स्क्रिप्चर्स. चलो फिर स्टार्ट करते हैं. आर यू रेडी? ओके, नाउ स्टार्ट. We often hear two words, culture and civilization. Do you know its meaning? Culture is a matter related to human life, while civilization is developed by human being, which he creates with his own caliber, skill and creative skills. Egypt, Mesopotamia, India, China, Rome exhibit such great civilization of human society. Centuries old civilization still inspire human life. Out of this civilization, we shall study about Harappa civilization. हमने कई बार ये दो वर्ड्स सुने होंगे, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यानी कि संस्कृति और सभ्यता. इसका मीनिंग पता है आपको? संस्कृति है वो मनुष्य के रहन सहन से जुड़ी हुई है और सभ्यता है मनुष्य की बुद्धि शक्ति स्किल से जुड़ी हुई है. पूरे विश्व में इजिप्ट, मेसोपोटामिया, भारत, चीन, रोम में ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, बहुत पुरानी ये सभ्यता आज भी ह्यूमन लाइफ को इंस्पायर करती है. तो चलो आज हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे. यहाँ पे एक मैप दिया गया है, आपको उसको देखना है. We know Harappa civilization also as Indus Valley civilization. Remains of this civilization were first discovered from Harappa in 1921. Many of the places the civilization in the northwestern part of India include Harappa, Mohenjo-daro, Lothal, Kalimbangana, Rakhigad, Dhodhavira. See the location of places of Harappa civilization in the map 3.1. Let's get information of town planning of some of the major cities and their features. हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली के नाम से भी जानते हैं. 1921 में हड़प्पा में से सिविलाइजेशन के पहली बार एविडेंस मिली है. मोहेंजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगान, राखीगढ़ी एक्सेट्रा. उसके बाद आ रहा है टाउन प्लानिंग. Organized town planning was the most important feature of Harappa civilization. All the towns were planned in a similar way. In all places, fort was on westward side and colony of common people. Colony of common people on the east side. Highway separated both of them. The fort on the west was surrounded by a fortress. Most probably rulers would have lived in the fort. Bricks were often used in their town structure. Let's study about various features of Harappa civilization. Town planning. Town planning में हड़प्पा का मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ये था, सभी टाउन का प्लान सेम था. सभी जगहों पे वेस्ट साइड फोर्ट और ईस्ट साइड कॉमन पीपल की कॉलोनी थी. दोनों से अलग हाईवे था. वेस्ट में जो फोर्ट था उसमें उसके सराउंडेड फोर्ट्रेस था, लश्करी किला था. किले में रूलर्स रहते थे. टाउन स्ट्रक्चर में मोस्ट ऑफली ब्रिक्स यूज करते थे. यहाँ पे एक पिक्चर भी दिया गया है. मेन फीचर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज देयर ऑर्गेनाइज्ड हाउस अरेंजमेंट. हाउसेस वेर कंस्ट्रक्टेड ऑन हाई प्लेटफॉर्म्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्लूड एंड डैम्पनेस. One of the feature of houses of Harappa was that the main gate opened in the lanes rather than towards the main road. Here single and double-storied houses were seen. Roads were very comfortable. There were two highways in the city, one of which connected north with south and the other connected east with west.
हड़प्पा का हाउस अरेंजमेंट उसका मेन फीचर था। जब जैसे कि बाढ़ आती है या घर में अंदर बेज आता है, तो उसकी जो ये हाउस बनाने की सिस्टम थी, उससे बचने के लिए उसकी जो घर की सिस्टम थी बनाने की, वो बड़ी अच्छी थी। यानी घर थोड़ा सा ऊंचा बनाते थे, यानी हाई प्लेटफॉर्म पे बनाते थे। और जो रोड है वो उससे भी रोड से थोड़ा सा ऊंचा बनाते थे। फिर उसकी ये भी एक खूबी है कि घर का जो मेन डोर होता है वो अंदर की तरफ खुलता है। यहाँ पे 1 या 2 माले के मकान देखने को मिले हैं। यहाँ के रोड फैसिलिटी वाले थे। सिटी में मेन 2 हाईवे थे, एक उत्तर से दक्षिण और दूसरा ईस्ट से वेस्ट तरफ जाता था। यहाँ पे पिक्चर भी दिया गया है हमको। पिक्चर है पब्लिक बाथ मोहेंजोदड़ो। Here streets were parallel to the main road. Roads intersected each other at a right angle. Roads and streets were organized in such a manner that the whole town could be divided into square and rectangle section. Evidence of night light system has also been obtained on public roads. There was highly developed and systematic system for disposal of water in Harappa civilization. The water from each house flowed into small sewer and from small sewer to the large sewer. Water from large sewer flowed out of the city, यानी कि out of the town. मेन रोड से पैरेलल स्ट्रीट है। रोड्स राइट एंगल में ये रोड, और उनकी जो स्ट्रीट का प्लान था वो ऐसा था कि पूरे शहर का स्क्वायर और रेक्टेंगल में बट गया। पब्लिक रोड्स पर नाइट लाइट का भी सिस्टम था, ऐसे भी एविडेंस हमको मिले हैं। अभी दूसरी ये अच्छी वाली बात थी कि जो उनके घर थे और जो उनकी पानी के बाहर जाने की सिस्टम बनाई थी वो बड़ी अच्छी थी। जैसे कि घर का पानी होता है जो हम घर में यूज़ करते हैं नहाने के लिए, बर्तन के लिए, ये सारा जो पानी है वो छोटे से नाले में जाता था, घर के छोटे से नाले में। फिर वहाँ से ऐसे कनेक्शन था कि बड़े गटर में जाए, फिर बड़े गटर में से सिटी के बाहर जाता था। अभी उसकी बात की गई है मोहेंजोदड़ो। Mohenjo-daro, in the center of this public bath, is a pond for bathing. There are steps arranged on both the sides to get into the pond. There are changing rooms around the pond. This public bath would have been used on festivals or religious occasions. In addition to this, parallel house used as assembly halls have also been found in Mohenjo-daro. मोहेंजोदड़ो में एक स्विमिंग पूल नहीं पर पब्लिक बाथ था। उसके 2 साइड स्टेप्स थे और उसके आसपास कपड़े बदलने के लिए कमरे भी थे। किसी फेस्टिवल या रिलीजियस ओकेजन के लिए यूज़ होता होगा, ऐसे हमको एविडेंस मिले हैं। फिर बड़े बड़े पिलर वाले हाउसेस को असेंबली हॉल की पहचान दी गई है। अभी नेक्स्ट है, उसके बाद मोहेंजोदड़ो के बाद है हड़प्पा इज एन आर्कोलॉजिस्ट साइट लोकेटेड इन मोंटेगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, करंटली इन पाकिस्तान. Harappa must have been the main town of Indus Valley civilization. The main feature of Harappa is its granary. About 12 grain stores have been found on the bank of river Ravi. पंजाब में मोंटगोमरी नाम के डिस्ट्रिक्ट में हड़प्पा मिला है। प्रेजेंट में वो पाकिस्तान में है। हड़प्पा इंडस वैली का सिविलाइजेशन का मेन सिटी होगा। यहाँ का मेन फीचर है धान्य का गोडाउन मिला है, यानी कि जो धान्य होता है उसका गोडाउन मिला है।
रावी नदी के किनारे 12 धान्य के गोडाउन मिले हैं, ऐसे हमको एविडेंस मिले हैं। नेक्स्ट है लोथल। लोथल के बारे में बात की गई है। लोथल is situated on the banks of Bhogao River in Dholka Taluka in Ahmedabad district. Lothal was a commercial port and an industrial town in ancient time. A structure made of bricks has been found in Lothal. It is considered that it must have been a dockyard. It can be assumed that the vessels यानी कि ships arriving here were used for loading and unloading of goods. In addition, warehouse and bead factory have been found here. So it can be said Lothal was a prosperous port of ancient India and international trade of Harappa civilization must have been done through the port of Lothal. लोथल की अगर हम बात करें तो लोथल अहमदाबाद में धोड़का में भागोवा रिवर के पास है। वो पुराने समय में कमर्शियल पोर्ट और इंडस्ट्रियल शहर था। लोथल में से ब्रिक्स मिली हैं। डॉकयार्ड मतलब कि पोर्ट का प्लेटफॉर्म, ये जैसे कि स्टेशन पे प्लेटफॉर्म होता है वैसे पोर्ट का प्लेटफॉर्म होता है, उसे बोला जाता है डॉकयार्ड। इसके अलावा बीड फैक्ट्री, बीड मतलब कि जो माला के मोती होते हैं वो वाले, इन सब से कह सकते हैं कि लोथल पुराने समय का डेवलप्ड पोर्ट था और हड़प्पा सिविलाइजेशन का इंटरनेशनल व्यापार लोथल में पोर्ट में होता होगा। नेक्स्ट है धोलावीरा। धोलावीरा इज एन आर्कोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन द खडीर बेट एरिया इन Bachau Taluka in Kutch district. Generally, the Harappa towns are divided into two parts, while the town of Dholavira is divided into three parts. Citadel Fort, Upper Town, Lower Town. The main speciality of Dholavira town is rainwater harvesting system and stadium. धोलावीरा की अगर बात करें हम तो धोलावीरा कच्छ डिस्ट्रिक्ट में बचाव तालुका में खडीर बेट एरिया में है। जनरली हड़प्पा के 2 पार्ट में बटा हुआ है और धोलावीरा 3 पार्ट में बटा हुआ है। सिटाडल फोर्ट, अपर टाउन, लोअर टाउन। धोलावीरा में के मेन फीचर हैं बारिश के पानी को कैसे रखा जाए और स्टेडियम। नेक्स्ट पॉइंट है कालीबंगन। Kalibangan town of Rajasthan was the headquarters of agriculture revolution in Harappa civilization. The remains of farms here provide proof of this. The copper residue found here proves that copper tools must have been manufactured here and these tools might have been used in agriculture. कालीबंगन की बात करें तो वो राजस्थान में है। उसका हेडक्वार्टर ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता होगा। यहाँ से कॉपर टूल्स हमको मिले हैं, वो शायद वो लोग खेती करने में यूज़ करते होंगे, ऐसे एविडेंस हमको मिले हैं। Thus the town planning of Indus civilization was well organized, well engineered, well planned and efficient. It is a wonderful reflection of the governing power of a ruling elite, the intelligence of the engineers and the craftsmanship of the craftsmen. इस चैप्टर में हम यहाँ तक करेंगे। इस चैप्टर में हमने हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगान इन सब के बारे में हमने जाना। आपको समझ में आया, अच्छा लगा? बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं